बट हाँ, थोड़ा-सा शैतान तो है वो। अच्छा, अगर निशा के साथ सो जाएगा तो फिर मतलब लाते और घूंसे और ये सब तो पड़ने ही हैं। मेरे साथ अच्छा। सोता है तो कुछ भी नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई ही डज़ दैट। सो आपका कोई हक भी नहीं बनता है कि आप इसमें क्वेश्चन करें। चाहे वो उनका खुद उन्होंने बेर किया, नहीं किया, सरोगेसी से किया, आईवीएफ से किया, कहीं और से हुँ। किया, जहाँ से भी किया। Who are you to talk about it? You can just be happy about the other person being happy. आप लोगों का इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, शूटिंग्स होती हैं, ये सब होता है, तो उसमें आपको कहीं फ़ील होता है कि काबिश मतलब एज़ अ पेरेंट आपने कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, करने पड़े हैं? कोई चीज़ आप करना चाह रहे थे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न आप नहीं कर पाए? टचवुड अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं है दैट वी हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज़ ऑफ वर्क फॉर काविश. So it's always been very easy. We were working from home for a lot of other things that we have been associated in. The major work portion has started now. Nisha has started a show. I have started a show. I'm starting another show also. So there are two shows that I'm doing. So ab thoda sa, I know it's going to get tough, but we are prepared for it. Actually, the initial I had thought a year or a year and a half. अगर हम मेरा निकल जाता है काविश के साथ, so I'll be happy. But almost 3 साल निकल गए काविश के साथ. Other things were being managed from home. So now he's a big boy actually, and he understands and he knows Mama Papa are going for shooting, so they're going for shooting. So he would do a video call to us from the shoot or talk to us, or then he would have a lot of things to tell us once we come back. So again, I think that's another thing that we have to keep him used to. कल को स्कूल जाएगा या हमें काम पे तो जाना ही है. So somewhere he's getting used to that routine. He will be busy with his school, and we need to go, of course, and work. So हुँ, Dhire Dhire, I think he has adjusted to that also. He was never a fussy child, or he has never been also till now. That कि नहीं, you can't go, you have to stay here. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो adjust कर लेता है, so which is good. किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मुझे भी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लाना चाहिए फॉर स्पेशली फॉर डैड्स? अब एक्चुअली ये बहुत इत्तेफाक की बात है, कुछ सोचा नहीं था कि ऐसे मुझे कुछ करना है. हुँ, सो हमारी जो सिस्टर कंपनी है व्हिच इज़ यूनिमो, यूनिवर्स ऑफ मॉम्स, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी फॉर मॉम्स इन द वर्ल्ड, with almost 5 lakh moms there now, who are in the ओके। community. It's a Facebook community. So नेहा से मेरी एक बार बात हो रही थी. She had come for one of our IPs, which is the Motherhood Chronicles. So she was one of the guests, panelists, जो निशा host कर रही थी. It had been produced by us only. So वहाँ पे उनसे बात हुई, and then आई थिंक उसके बाद में हम लोग एक दो बार मिले, जहाँ मैंने उनको क्वेश्चन किया कि ये लेडीज के लिए ही क्यों ऐसी कम्युनिटी है, व्हाई नॉट फॉर द डैड्स, बिकॉज डैड्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की तारीख में. आई अंडरस्टैंड कि हमारे शायद जब डैड्स थे, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा, या फिर इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे वो बच्चों के साथ. But today the world is very different, and we get so involved. A lot of my friends are involved in bringing up the child. There's so much that we do. Then क्यों नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए? तो somewhere वहाँ से उन्होंने भी कहा कि हम भी कब से सोच रहे हैं, बट वो एक मोटिवेशन हमें मिल नहीं रहा है कि हम कैसे करें और कब करें. And then धीरे धीरे it just happened during the pandemic on 14th of May, I think. 14th of May we started Unidad, and that's how it just happened. The feeling is great, and so this is called Unidad, Universe of Dads, which is the first community for dads in India. So no matter what, हम पहली community हैं, चाहे हम इस हुँ, space पे भी grow कर रहे हैं, but अच्छा लगता है that एक ऐसा platform है जहाँ पे the men are coming, we are learning from each other, there's a lot to share, so there are activities lined up throughout the week. Monday is for Influencer Day, where I call or invite women from Unimo, and they talk about their experiences on our community. Then Tuesdays for Chef of the Week. So if you guys are cooking for your children, the men put out pictures of that. Wednesdays for Budh Bazaar. आप अपने business के बारे में बात कर सकते हैं. Thursdays for travel. So travel memories people are sharing. Fridays for fitness, so we're sharing our fitness regime. Saturdays for cars or bikes is for groom Saturdays, and Sunday is for just me time with your child. So it's like a chilling day.
So people are posting pictures of that, and then we have a lot of Zoom calls happen. There are a lot of contests that keep happening. A lot of interviews keep happening. So slowly, steadily, we are growing into a community where globally we have 1,200 dads who have joined us. अभी आज का जो माहौल है उस और जिस तरह से आप लोग काम करते हो तो पेरेंट्स मोस्टली वेल टू डू हैं और केपेबल है कि जो भी बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए तो वो आप लोग उसे दे सकते हैं। तो आप काविश के साथ ऐसे रैशनलाइज करते हैं कि नहीं ये आपके लिए नहीं है थोड़ा रुको, या फिर सारी मांगे पूरी करते हैं उसकी? नहीं, ऐसा नहीं है that उसकी सारी मांगे पूरी होती हैं. We always reason out with him. We of course at times give him things जो उसको चाहिए या हम अगर अपनी तरफ से देना चाहेंगे. बट ऐसा नहीं होता है कि उसको 10 गिफ्ट एक साथ आ रहे हैं या फिर जो चाहिए वही मिलेगा. आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक एजुकेशन है. समवेयर द मदर एंड फादर हैव टू कंट्रोल देयर हॉर्सेस. एट टाइम्स निशा सोचती है कि नहीं ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, एंड देन वी रीजन आउट कि आई थिंक अभी इतना काफ़ी है, थोड़े टाइम बाद हम लोग कुछ ले लेंगे. एंड maybe this is what he needs at this age, this is what he doesn't need at this age. So somewhere we always work out that fact and we try and talk it out between the two of us. And then we take a decision, and then if I agree with her कि हाँ भाई ये तो करना ही ज़रूरी है, तो then we do it. But he's also not a kind of child that जो कहेगा कि मुझे ये चाहिए and he's after it, and no matter what we just have to do this. So it's good. And बहुत रेयर होता है कि अगर वो थोड़ी जिद करे. उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग होती है कि मुझे एक बलून चाहिए. ओह! So we have already got some balloon packets that we keep. So every day, हुँ, as a ritual, he's supposed to come in the morning. He asks for a particular color, and then I'm supposed to speak to the fairy and get on a call with the fairy and ask her first that can we give him a balloon because he's asking. Then he would say, okay, can I have 5? And we will say no. The fairy is saying no, you can't have 5. You can have 1 or maybe 2. That's it. So he says okay, then 2 is okay. So then we'll give it to him. तो ऐसी कुछ चीजें हम लोग creatively आई थिंक बच्चे के साथ थोड़ा बच्चा तो बनना ही पड़ता है, थोड़े बन वैसे इनोवेटिव हो जाते हैं. एंड बस यही मांगे हम बेचारे की, और क्या है, इससे ज़्यादा तो कुछ और कहता भी नहीं है. फिर हम अपनी खुशी से ले आते हैं जब ज़रूरत होता है कुछ. अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि हम जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सिखाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं. ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है कि आपने काविश से कुछ सीखा हो, एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए रहा हो कि ये इसकी जो हैबिट है या ये जेस्चर काविश का मुझे कुछ सिखा गया, मैंने इस चीज़ से. I I don't know if there's anything like that is different. Um, he's quite social. बहुत ज़्यादा मिलनसार है, लोगों के साथ भी काफ़ी बातें करता है. Shying away is well, it's like a mixture of everything. Something that he does that I don't. बड़ा मुश्किल हो गया है कहना, because it's almost like he does everything that we do. There's nothing different that I can pick up from him. नो I don't प्रॉब्लम. know. आपको ऐसा लगता है कि बच्चों में कितना ज़रूरी है अभी के माहौल में कितना मॉरल चीज़ें इनकलकेट करना, और आप कैसे करते हैं कि मॉरली क्या करेक्ट है, क्या नहीं है, कैसे अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं? वो वाली जो टीचिंग्स हैं अभी से शुरू हुई है काविश की, या फिर वो अपने आप ही मॉरली इतना साउंड है, इतना अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें समझता है कि इनके साथ ऐसे बिहेव, जैसे बच्चों का होता है ना, कई बार मेड आती है तो उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, तो पेरेंट्स आते हैं बिहेवियर अलग होता है, तो वो चीज़ कैसे टैकल? क्योंकि बच्चे एकदम समझ जाते हैं कि हाँ ये बंदा वो है, इससे अपनी बात नहीं है, ये तो उस चीज़ को कैसे? I think somewhere हम दोनों ने कभी ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है घर में, or even in our workspace actually. So that's what I think he has also picked up. तो अगर हमारे घर में भी 24 hours अभी जैसे नैनी है, so she's like a family only. We treat her like family. He's also very attached to her. So ऐसा कभी भी हमने एक वो क्रिएट नहीं किया बैरियर that maybe there is a servant in the house, or this is what you have to do, or this is what you can't do. Um, because we treat them also like that.
सो वो भी बल्कि बहुत मिलनसार है. सो वही मैं जो कह रहा था पहले कि दैट ही रियली लाइक्स टू गो मिंगल विद पीपल, ही वुड सिट डाउन, प्ले विद देम. वी हैव नॉट बीन वेरी लकी विद अ 24 आवर पर्सन टू वर्क इन द हाउस, बट जो भी आता है उसके साथ बैठ के खेलना शुरू कर देता है, उससे बातें करेगा. सो ही हैज अ पर्टिकुलर नेम. अगर इट्स अ गर्ल हु कम्स, ही वुड से न्यू दीदी. सो यू जस्ट नॉट, मतलब कोई नाम नहीं कहेगा, बोलेगा न्यू दीदी हैज कम. या फिर अगर 2 दिन बाद जा रही तो बोलेगा न्यू दीदी इज गोइंग अवे. सो a new guy comes, this is new भैया, this is भैया is going away. So I think he अभी वो उस zone में है जहाँ पे for him accepting everyone is very easy, letting go of everyone is also very easy. But yes, he's connected with us. He knows mama papa nani है या फिर his nanny is there. So he's attached to them. उनको पता है कि एक safe zone में ये 4 लोग तो मेरे साथ हैं, कुछ भी हो. So I'm very comfortable with them. Um, but yeah, this is morally we've never taught him any difference. But of course, we tell him what's right, what's wrong. You need to educate your child with certain things as well for their protection. कैसे बाहर किसी से behave करना है या क्या बोलना है. As it is, he behaves very disciplined when he's outside the house. He's totally different outside the house. घर में पूरा शैतान, and he's like the king, creating the chaos. So, but that's good. I think it is again a good thing that Kavish has both sides that he's exploring. He's not like totally an introvert guy कि मतलब किसी से बात ही नहीं करनी है, कुछ बोलना ही नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि he's become mischievous और तोड़ रहा है चीजें या बदमाश बन गया. So he knows, he's very organized, he likes cleanliness himself. उसकी एक गाड़ी अगर सीधी लाइन में लगाई है उसने तो उसको वही चाहिए, उसको एक भी चीज ठीक से ऐसी टेढ़ी नहीं चाहिए. He doesn't like it, and he's मतलब वो हम तो 2 OCD थे ही, मुझे लग रहा था ये तो हमसे भी आगे निकल जाएगा. So yeah, he's picking up all that stuff. तो मतलब ये कि आप लोगों को देखकर जो भी सीखा है वो आप लोगों को देख के सीखा है और वैसे ही वो भी I बिहेव know, करना शुरू कर. of course, yes, it does happen. तो करण अभी एक्चुअली काफी सारे जो पेरेंट्स हैं वो सरोगेसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अपने खुद के बच्चे नहीं हैं उनके. तो आपको लगता है कि अगर कोई सरोगेट मदर है तो वो इस पूरे प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर, मतलब दे आर मिसिंग समथिंग इन देयर लाइफ ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ बीइंग अ मदर बाय हरसेल्फ. See, of course, it's quite an unfortunate situation when a couple are not able to have a child. But अगर उनकी चाह है और एक एक want है that they want a child, I don't think there's another option. Until unless आप adopt कर रहे हैं, until unless you go through a surrogacy, which is a process that a lot of people have done to have children. And medically also it is all okay, as such कोई problem नहीं है. But yes, एक want होती है, एक चाह है कि आपके बच्चे खुद के हों. Yes, you can't go through the process. I think it's the most painful process of not going through the process yourself. You know, कौन सी ऐसी औरत होगी जो खुद एक माँ बनने के प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहेंगी. Of course वो चाहेंगी, no matter what. But just imagine the pain of not going through it and seeing that आपका बच्चा किसी और के पेट में है 9 महीने, फिर वो आपको मिलेगा. तो एक दुख तो होता ही है, बट ऑफ कोर्स एक वो भी है कि मतलब आपका बच्चा आपको मिलने वाला है. So a lot of people have done that. I don't think it's a thing that a lot of people think about कि अरे ये कैसे आपको नहीं, अच्छा आपका बच्चा तो आपने नहीं किया. ये बहुत एक अजीब सी चीजें हैं हमारी सोसाइटी में. when people start questioning something that is very private. एक कपल की अपनी सोच है, एक कपल की अपनी वांट है, एक कपल का अपना डिसीजन है. आप इसमें बोलने वाले तो कोई होते ही नहीं है. तो आपका कोई हक भी नहीं बनता है कि आप इसमें क्वेश्चन करें, चाहे वो उनका खुद उन्होंने बेयर किया नहीं किया, सरोगेसी से किया, IVF से किया, कहीं और से किया, जहाँ से भी किया. Who are you to talk about it? You can just be happy about the other person being happy. But ऐसा होता नहीं है ना. हम लोग so we are never satisfied even with others what they're doing. तो अपने आप की तो बात ही बहुत दूर होती है. So I think it's a great thing. Science has really moved so much ahead that people can actually look out for such an opportunity to still have children. हमने खुद भी
अपने एम्ब्रियोज फ्रीज किए हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. टचवुड हमें जरूरत नहीं पड़ी, बट हमने किया हम्म, था, हमने खुद भी किया था। हमने सोचा था कि सर्टेन एज पे आपको कर लेना चाहिए, कल को कभी ऐसा हुआ कि आप सोचें और नहीं हो पाए तो आप उस टाइम क्या करें। सो हम्म, आई थिंक वी टुक दिस डिसीजन व्हेन आई वाज लाइक अबाउट आई थिंक अबाउट 32 30 आई थिंक, हाँ करीबन 8 साल, नो सॉरी 6-7 साल पहले की बात है। जब हमने ये सोचा था वी शुड डू समथिंग लाइक दैट, एंड इट्स नॉट रॉन्ग। आजकल की तो साइंस ऐसी भी है, आपने अगर जो एम्ब्रियो फ्रीज किए थे, आपके बच्चे भी वो एम्ब्रियो यूज कर सकते हैं। correct. So this is a time to So be, I this looking is forward this is in life. amazing. ठीक है. Yes, Right. बिकॉज आजकल जो केसेस हैं आज की पीढ़ी के लिए, ये ज्यादा है कि वो लोग खुद नहीं कर पा रहे, और देयर सम अदर कॉम्प्लिकेशंस हैपनिंग, मेडिकली समथिंग इज हैपनिंग विद द वुमन और द मैन, एंड देयर, ये सब चीजें हम पहले इतना सुनते नहीं थे। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी शायद इतनी, बट इट हैज स्टार्टेड हैपनिंग अ लॉट। एंड मतलब अगर हमारी आगे जो जनरेशन होगी, जैसे हमारे बच्चे हैं, शायद उस टाइम पे कुछ और ना हो जाए। मे बी पीपल विल नॉट बी एबल टू, और आई डोंट नो, वी डोंट नो, इट्स वन इन Right. अ मिलियन केसेस भी हो सकता है। बट यस, मे बी जो हमने आज किया शायद उनको काम ना आ जाए, हु नोज। बट यस, इट इज फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली, सो इट इज फ्रॉम द फैमिली ओनली। आप लोग ऐसा भी सोचते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, एंड वी शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट इवन इफ पीपल आर ऑप्टिंग फॉर सर्विस। True. अच्छा, ऐसी कोई चीज है जो काविश आपके साथ ही करना एंजॉय करता है rather than doing it with निशा? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हमारी। हम्म, जैसे सोएगा तो मेरे साथ ही शांति से चुपचाप फटाफट सो जाता है। अच्छा. बट विद निशा हिल टेक आवर्स, 1 घंटे तक बातें हो रही है, ये हो रहा है, लाइट बंद होने के बाद भी, और बहुत टाइम पास होता है। अच्छा, अगर निशा के साथ सो जाएगा तो फिर मतलब लाते और घूसे और ये सब तो पढ़ने ही। मेरे साथ अच्छा. सोता है तो कुछ भी नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई ही डज दैट। बहुत सारी ऐसी मस्तियां होती हैं that he does. Even if he goes to pee with हम्म. Nisha or anybody, it's all a mess created every time in the bathroom. And with me, he will go आराम से अच्छे से सब कुछ कर पूरा के आ जाएगा। So कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी मस्ती में he does. बाकी I think everybody does their bit also very nicely. But हाँ, थोड़ा सा शैतान तो है वो।